सब सब झंझटों से फ्री होके फिर आराम से आप ये टाइम अपना होता है। मैडम आप तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, झंझट कहाँ है? अरे स्टूडेंट डीलिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैम। अरे Thank you ma'am for joining us. Participants, my without delay, pleasure for you all to invite me. I would like to introduce today's our one of the esteemed speaker, Professor Asiya Chaudhary ma'am. Ma'am has done her BCom, MCom from Aligarh Muslim University, PhD in Commerce from Aligarh Muslim University, a short-term course on social entrepreneurship from Department for Continuing Education, University of Oxford, UK. Ma'am का जो teaching experience है participant, she has more than 20 years of teaching of UG and PG students and PhD students, MBA, MTA and DBF, etc. in Department of Commerce. Area of specialization जो मैम का है वो है direct taxation, business statistics, business and managerial economics, marketing and behavioral economics. These are the important areas of specialization of madam. Research interest जो मैम का है वो marketing, behavioral economics and women's studies. Participants, she has successfully awarded under her supervision 14 PhD and 4 still undergoing her able guidance. As far as publication of Ashia ma'am is concerned, she has already published 4 quality books and more than 35 academic papers in national international journals of repute. I think that is more than enough to be introduced. Yes, ma'am. Yes. Because the participant must know that I am a faculty here and. Yes, ma'am. But one important thing, ma'am, that you are the convener and director of SURE, that is stimulating urban renewed through entrepreneurship program. And ma'am has also nominated for MU under the with University of Hudson, US, exchange program under 5th UDC Tech University Grant Commission. These are the ma'am. Ma'am is also provost of various halls of like Begum Azizun Nisa IG Hall, and she is a very busy person nowadays also. As ma'am told us that she is busy in SURE program from 12th August. So I think ma'am has given us time, and that is very valuable. And I'm sure that, and I can assure our participant that the lecture which she will deliver and going to deliver now will be a kind of bombastic, I will say, ma'am. And you motivate the participant to not go for only job, but for entrepreneurship also. So today, ma'am will discuss and will talk on the entrepreneurship development. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much, Aftab sir, for so humbly introducing me to the participant. And I think when I am going through my session, I'll partly introduce my work and myself because being an entrepreneur, you know, that is, bulky. I would say that at colleges and at university level, it is becoming a necessity to motivate the students towards entrepreneurship. That is the most important part nowadays. So thank you so much. Sorry, ma'am, to interrupt you 1 minute. Participants, today you will have one pre-test after ma'am's lecture. जैसे ही मैम का लेक्चर खत्म होगा, आप लोगों को क्वेश्चनर दिया जाएगा, उसको आप फिल करके within an hour you have to submit to Mazhar sir. So that means test on the very first day. Yes, ma'am. Pre-test होता है मैम. फिर उसके बाद last day हम post test करते हैं कि what they have learned and how much they have sensitized on the various topics which we have delivered by our esteemed speakers. Okay. So आज तो मैं I will request a copy of that test for myself also. Okay, if you can share it with me. I will send you. Okay. Thank you so much. So let us not keep the participants waiting. So let us start with the session. And before that, I would like to share my presentation here. And just a minute. Okay. So we have it here. I hope the slide is there. Yes, ma'am. Yes. Okay.
So we have it. The presentation is our training as an entrepreneur, where we are going to discuss about how entrepreneurship helps, the young generation from seeking the job to earning his own living by engrossing himself in an entrepreneurial activity, or maybe in the business activity. And how, see, my session will be divided into three parts, where the first part will be explaining what is an entrepreneurship, or who is an entrepreneur, and how he is useful to the economy and the society at large. After that, we will come to the second part, that how is it that India is facing such an acute problem of unemployment, and at the same time the problem that is not only unemployment, but uh, what are the reasons, basic reasons for that, for this unemployment, and also at the same time not going for entrepreneurship. And the third segment will be with your suggestions and what government is doing, and what are the further suggestions for every one of us, all of us, as a teacher at the college or the university level uh, platform. How? Because we are dealing with the generation that is ready to jump on the road, jump on the field in order to start their living. एक्चुअली जो भी कॉलेज के बच्चे होते हैं वो उस थ्रेशोल्ड पे खड़े होते हैं जहाँ पे उनको अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होती है, अपनी रोजी रोटी की शुरुआत करनी होती है. And therefore they have to be, how we can, as their mentors, as the teachers, help them to design their career. And maybe instead of looking for a job all the time, I think we can ask them or help them or mentor them to become an entrepreneur. So the first part, that is what is an entrepreneurship. Actually, see, who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who just looks around him in the society, in the place, in the city where he lives, and he just identifies certain problems that are existing there. And when he identifies those problems, there is a sort of gap that is existing, and for this problem he just tries to find out the solutions to that. And when you try to find out the solution to the existing problem, the solution is in terms of maybe a product or a service in order to help those people, or help or work out those problems. And while identifying the problem and producing the goods or service, an entrepreneur, he brings together all the factors of production, maybe including your land, labor, capital, or the raw material, the technology, everything. He brings them together, and then he processes them into that complete product or output. He also takes various risks. The risk can be, financial risk, because maybe that product he is going to produce in the economy, whether will that be accepted or not accepted. So there is a social risk. There is a risk of maybe receiving, the product into the market, how a consumer react to his goods and services. And at the same time, maybe he's taking the financial risk, because if it is not accepted, then maybe at the time he's going to get into financial losses. So he takes all types of risk and bring together all the factors of production, and then at the same time, he is producing something meaningful into the society. So that is an entrepreneur. How we define this a person as an entrepreneur. And why is it that these days it is a buzzword, entrepreneurship everywhere? The government is always talking about that, let us produce more and more entrepreneurs. The government is, including in the syllabus the vocational, the skill development skill development programs, and at the same time it is also nurturing, colleges and universities with innovation and incubation centers. It is giving lots of funds for training people, or training young generation for entrepreneurship, because because of the reason or answer to this government's promotion of entrepreneurship is the existing widespread unemployment into the country,
We need more people as a job givers rather than more people as a job seeker. There should be more and more people who should be giving out the job, you know, instead of because if everybody, just imagine an economy जहाँ पे सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और कोई भी बिजनेस यूनिट्स नहीं है तो नौकरी देगा कौन? क्योंकि नौकरी प्रोवाइड ही बिजनेस यूनिट्स या एंटरप्रेन्योर्स देते हैं, नौकरी देते हैं. So we need more job givers in the society. This is the time now. And then India, अगर India के context में देखें तो we have lots of entrepreneurial brains. You can just explore and you look around all the entrepreneurial cities. In UP, we have so many. For example, Kanpur is an entrepreneur industrial city. Agra is an industrial city. Aligarh also, to a large extent, it is an industrial city, and so many. So this way we find that India has lots of entrepreneurial brains and lots of startup ideas. And when the government is started, because ये ऐसे proof होता है कि government ने जब इसको promote करना शुरू करा entrepreneurship को country में, तो automatically this started happening that so many people came up with such novel startup ideas. The novel startup ideas मैं इसलिए कहती हूँ वो copycatted नहीं थे, copied नहीं थे from US or European country, because the young generation, when they are going for startup, they just look into the problems around and they say yes, ये इस चीज का मसला है, तो इसलिए इसको जो है लेके आते हैं और फिर उसका solution जब होता है वो पूरा Indian it is, you know, designed for Indian population, for the Indian situation, and therefore we can, और इतने यूनिकॉर्न से स्टार्टअप शुरू हो गए हिंदुस्तान में, तो इसलिए हिंदुस्तान में ब्रेन्स की कमी नहीं है, एंटरप्रेन्योरल ब्रेन्स की कमी नहीं है, उनको सिर्फ नर्चर करने की कमी है. And that is the reason why government is promoting entrepreneurship these days. And once we understand that what is an entrepreneurship is, what is the function of his entrepreneur, we know that not only that he becomes a job creator, he provides direct or indirect employment, but also he generates various creative ideas also. Because see, उसका जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं, एक नॉर्मल कंज्यूमर और एक एंटरप्रेन्योर जब उसी चीज को देख रहा होता है, उसका परसेप्शन अलग होता है. ही हैज अ वेरी डिफरेंट विजन, ही इज अ विजनरी पर्सन, और वो उसका परसेप्शन भी अलग होता है, और उसको दो लोगों की जरूरत, वो एक्चुअल रिसर्च कर रहा होता है ग्राउंड वर्क पे. तो उस रिसर्च के बेसिस पे जब वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, तो वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा which is different from others, because there are so many people in the field. They are competing in the market. तो competitors को face करने के लिए उसको बहुत सारे जो है वो देखने पड़ते हैं, solutions निकालने पड़ते हैं. But what fits the best and how he will be different from his competitors, जिससे कि उसका product बिके, तो he comes out with very unique and very creative ideas. And when he is producing, I said that he uses, you know, all factors of production, जिसमें land, labor, capital सब होता है. तो जो labor वाला part होता है, तो labor जो वो explore करता है, it's not only the labor that is a worker और मजदूर या इस तरह का नहीं होता है सिर्फ. इसमें जो है, he looks for engineers, he looks for maybe, you know, scientists, he looks for researchers, he looks for ITs, you know, this IT sector के लोगों को ढूंढ के निकाल के लाते. तो he is exploring the talents of professionals, and he also, you know, works on his profits and loss, and therefore he brings in lots of money into the Indian market. और अगर export कर रहा है तो international currency लेके आता है, because through his exposure, you know, a promotion of export and import and maybe many other things. And therefore we can conclude that an entrepreneur, he brings in new investments, more flow of money, whether it is national or international. He brings in more competition. And देखिए, competition ज़्यादा होना हमेशा अच्छा होता है, हमेशा बेहतर होता है, because more the competition, the better it is. ऑटोमेटिकली क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी कंज्यूमर को, जितना अच्छा कंपटीशन होगा.
ऑटोमेटिकली नॉट ओनली क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइसेस भी लो होंगे जितना अच्छा कंपटीशन होगा मार्केट में. Therefore, when one plunges into the market to be an entrepreneur, he is enhancing that competition, and he also, develops a huge talent pool in the economy. And by doing so, he is hiring, he is paying wages and salary. So that means he improves the standard of living of the people. तो इनकम बढ़ती है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बढ़ता है, ह्यूमन क्वालिटी बढ़ती है, and finally this goes on in a cycle, in a loop, again and again, multiplier impact, and there is a creation of wealth in any economy. There's always a creation of wealth. So this is the first part that explains who an entrepreneur is and how is it that an entrepreneur is necessary for any economy. So I think there has to be a balance between the two. That is, people who are looking for job and people who are giving jobs. अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी कंट्री में हो सकता है थोड़ा सा इसका भी वजह हो कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर जॉब. तो कितनी जॉब कोई दे सकता है पूरे कंट्री में? There should be some people, balki proportionately a huge percentage of population who should be job giver also. Automatically unemployment की crisis जो है वो कम हो जाएगी. So this was the first half. Now let us come to the second half. That is, where does India stands? So today we are the biggest population on this earth. I hope all of you must be aware of it. And out of this biggest population, we are blessed with majority as a youth population. हमारा जो 65% population है वो youth population है, young population है, who falls under the age of 35 years. And why do we call them a dynamic young population? There is a reason behind this. Why do we call them dynamic? And why do we call them young? Obviously, youth is an energetic force of any economy, and it is the most productive section of any society also. So a country's ability and potential for growth are determined by the size and strength of its youth population. It is one of the most important, resource of young citizens entering the workforce, and therefore they create an economic and a demographic dividend, which means that economic growth resulting from the population's age structure shift. जो बूढ़ी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की ज्यादा होती है तो वहां पे मसला ये होता है कि जिनको फीड करना है गवर्नमेंट को वो ज्यादा होते हैं. Obviously, because old population are the retired population or the kids, they cannot work. तो जो 35 साल के आसपास की जो जनरेशन होती है, जो पॉपुलेशन होती है, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है. और हिंदुस्तान में अभी उसके पास 65% है. और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, बच्चे या बुजुर्ग, वो सिर्फ 35% है. So it calls, this kind of population calls for an economic trigger when our country has more hands who are available to work rather than more mouths to feed. And therefore, और एक चीज और भी है साथ साथ में कि today's whoever comes under the younger generation, they are tomorrow's innovators, creators, builders. They are the leaders. They are the producers. They are, they are the future of the country. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हिंदुस्तान में कि हमारी आधी से ज्यादा जनता जो है वो यूथ है और प्रोडक्टिव है. कंपैरिजन अगर हम करें, इफ यू जस्ट टेक अप द डेटा फ्रॉम चाइना, चाइना में क्या था कि इफ यू रिमेम्बर कई साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, वन चाइल्ड पॉलिसी निकाला था इन्होंने. And with this one child policy, what happened? They were banned to produce more children, and therefore there was one. और हुआ क्या, जब एक एक बच्चे हुए तो जो यूथ वाला जो सेगमेंट था वो श्रिंक होता चला गया. और जो ओल्ड इस समय 15 साल के बाद जब वो यूथ जवान हुआ है तो हमारे पास काम करने के लिए हाथ कम है लेकिन खाना खिलाने के लिए बुजुर्ग ज्यादा है. And the load on the government treasury, टैक्स का पैसा ये जो यंग कमाते हैं उनके टैक्स के पैसे से ही
ओल्ड एज को पेंशन और ये सब चीजें दी जाती हैं, फ्री मेडिकल, फ्री एवरीथिंग, तो वो बहुत ज्यादा है लोग, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंपनसेट दोज ओल्ड जनरेशन। तो हिंदुस्तान में एक ब्लेसिंग है कि वी आर इन द रिवर्स इक्वेशन, और उसके बहुत सारे फायदे हैं, बट एट द सेम टाइम ये ब्लेसिंग है या नहीं है, ये प्रोडक्टिव हो पा रही है, हम इस जनरेशन को इतना प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन दीज डेज। द रीजन इज दैट द एम्प्लॉयमेंट लेवल in 2021, sorry, was as high as 28.26%, and in spite of the fact कि higher education हमारा जो है वो sector बहुत तेजी से बढ़ रहा है, that is approximately we find that 1920 का data एक हमारे पास था, 38.5 million students study, they complete their higher education, और उसमें जो है हमारा GR बहुत इम्प्रूव हो चुका है, दैट इज जनरल एनरोलमेंट रेशियो, दैट इज 7.9% इन द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये एक बड़ा ही एक सॉरी पिक्चर स्टेट है दैट वी हैव सच अ ह्यूज एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, not only the primary schools but also the higher education, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी कॉलेजेस हैं, इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी काफी जनता अनएम्प्लॉयड है, डिग्री भी मिल रही है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं तो फ्लॉ है। And there was a recent data which said that although India's higher education system contributed almost 350,000 engineers every year and 2.5 million university graduates every year to the workforce at any given point, but about 5 million graduates, they remain unemployed every time. So a large amount of literature has been analyzed, and we find that the biggest issue is मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद, इतनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म या ये कहना चाहिए बेस इतना स्ट्रांग होने के बाद, इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये जो एन एजुकेशन है, मे बी there are so many literatures that are available which talk that there is a huge mismatch between the education and job at a macro level as well as मे बी एट अ मैक्रो लेवल। और दूसरी चीज ओवर एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that there is an over education problem also when the supply of educated workers seem to be more than its demand in the labor market, which leads not only to unemployment to some extent but also to wage reduction। क्योंकि देखिए एक काम करने के लिए 50,000 लोग खड़े हुए हैं उसी डिग्री को लिए हुए, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनका बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है, वेज कम होती है, और काफियों को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि पोस्ट अब सपोज 4 है और 1000 बंदे खड़े हुए हैं उसके पीछे, तो 4 ही को तो नौकरी मिलेगी और कॉम्प्रोमाइज भी हो जाएगा, कम वेजेस में भी ना काम करना पड़ेगा। तो काफी और भी रिसर्चेस करी गई इसमें, एंड देयरफॉर देयर वर सम स्किल मिसमैचेस दैट वाज फाउंड कि किन तरह की मिसमैचेस हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। And there are 3 types. First is your over education. The second is your technical mismatch in the technical maybe education, skill mismatch in the technical education, and quality skill gap. Now let us just understand in detail about these things कि क्या फर्क है तीनों में और क्या क्या होता है ये। So the first is over education. As we said, that it can be defined as a form of skill gap where overqualified people with tertiary education are hired for job or activities that do not require such qualification। क्योंकि इतनी ज्यादा लोग क्वालिफिकेशंस के साथ इतनी भीड़ लेके खड़े होते हैं कि फिर क्या होता है कि ओवर सप्लाई होती है।
और जब ओवर सप्लाई होती तो हायर एजुकेशन की डिग्री जो है टूल की तरह यूज करी जाती है इन ऑर्डर टू हायर देम. And when they use it as a transparent tool, and it also becomes a very easy screening device also. भाई हाई स्कूल करा है वो मत अप्लाई करिए, इंटर करा है वो भी नहीं आइए, ग्रेजुएट वाले आ जाइए, ग्रेजुएट में इतने, पता चला उसमें जो इंजीनियरिंग में भी करा हुआ है. But that, you know, that crowd and that lump sum quantity और डिमांड नहीं होती है उस चीज की या कम होती है, तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं कई चीजों पे. और इसमें जो है फॉर एग्जांपल में भी आपने चारों तरफ देखा था, इफ यू अग्री विद मी, फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन्स में काफी लोगों को देखा गया, दे बिकम अ बस ड्राइवर्स, मे बी दे बिकम ऑटो ड्राइवर्स इन स्पाइट की वो डिग्री लिए हुए हैं, ऑटो उसके पीएचडी डिग्री लिए हुए हैं, या फिर वो और कौन सी डिग्री ले सकते हैं, पीएचडी की डिग्री है, या फिर हायर एजुकेशन में उनकी और बड़ी उनके पास डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बस ड्राइवर या कॉलेज टैक्सी ड्राइवर बनना पड़ता है इनको. डू यू एग्री? हैव यू सीन सच केसेस एवर? एनीवन? प्लीज, आई वांट you all to please respond to this. Have you witnessed these kinds of things all around? Yes, there are many cases. I have seen. Recently, there were some trending posts on the social media as well, for the PhD holders. They were selling the dry fruits. Exactly. They are fruit vendors, they are, you know, they are shopkeepers, they have done PhDs, they have such big degrees to their, you know, to their careers, to their credit, but they are not able to get the jobs, and therefore they all are compromising. So that is, over education is one big problem. Second is skill mismatch in technical education. What happens here, that there are people who have received their higher education in technical you know, in technical fields such as maybe agriculture, maybe engineering and technology, but they end up in the kind of job which did not require that degree at all. For example, an agricultural scientist, he maybe compromises to the post of a director or manager of any company. जबकि हो सकता हो वो उसने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है तो कॉमर्स नहीं पढ़ी हो, लेकिन क्योंकि मैनेजर या फिर सुपरवाइजर या फिर डायरेक्टर की पोस्ट निकली है खाली, तो उसमें वो जो है कॉम्प्रोमाइज करके वो ज्वाइन कर लेते हैं. बिकॉज ठीक है, इट्स ओके दैट टिल थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इनको जो है डिग्रीज है, क्वालिफिकेशन से सब है, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है जॉब की, तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है छोटी छोटी जॉब्स के साथ, या फिर मिसमैच, बिल्कुल टेक्निकली मिसमैच होती है. And the third is the quality skill gap. That is, the third form is when firms, they hire from jobs that require from the same you know, tertiary education background, but they complain that the quality or the skill is very much inadequate for such activities. That is, as a consequence, while persons with higher education, they may be hired for some jobs, but they require significant training also at the same time, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं दी जाती. हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, वो बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि वो एक्सपर्ट हो गया है कॉमर्स की, उसमें अब पोस्ट निकली अकाउंटेंट की, उसने जाके वहां पे ज्वाइन कर ली. अब क्या होगा कि जो पोस्ट उसने ज्वाइन करी है कॉमर्स की, वहां पे सॉरी अकाउंट्स की, अब अकाउंट्स का जो बही खाते बन रहे होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करनी होगी, देयर ही फाइन, यू नो, ही गेट्स स्टक अप. वो बच्चे को लगता है कि अरे मुझे पढ़ाया तो कुछ और गया था, यहाँ पे जो है पूछा कुछ और जा रहा है, मतलब करने में कुछ और जा रहा है. तो उसको क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिली कभी भी, उसने सिर्फ डेबिट क्रेडिट और ऐसे रटा हुआ था, एंड देयरफॉर ही डिड नॉट गेट एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन दैट. सो नाउ व्हाट द कंपनी हैज टू डू, फर्स्ट दे हैव टू ट्रेन देम अप, और उसके बाद वो 2-3 महीने के बाद वो एफिशिएंटली निकल के आता है और वो काम सीख के फिर वो करने को तैयार होता है. ठीक है, यही होता है, ज्यादातर होता था. बट नाउ व्हाट द कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग इज दैट दे फील दैट कि नहीं,
हमें जो है इस तरह का बंदा नहीं चाहिए जिसको हम पहले 3-4 महीने ट्रेन करने में वेस्ट करें। ही सेज दैट हमें जो है ट्रेंड बंदा चाहिए। अब इसीलिए आजकल आप देखिए ना, ज्यादातर जॉब करने से पहले क्या होता है, क्या पूछा जाता है, दैट इज किस डोमेन में आपने इंटर्नशिप करी, डू यू हैव सम सर्टिफिकेट्स, बिकॉज दे वांट समबडी हु इज सेमी ट्रेन्ड में भी, उनको कुछ ना कुछ जो है वो काम ऑलरेडी मतलब कर चुके हो, कुछ प्रैक्टिस हो, कुछ रिहर्सल हो, कुछ इंटर्नशिप हो, सो दैट इट्स बिकम इजियर। और वो पहले ही दिन से जो उसको जॉब दे रहे हो, जो तनख्वाह दे रहे हो उस जॉब के लिए, वो पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उनकी सैलरी जो है वो वैलिड हो। वैलिड तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो सैलरी दे रहे हो उतना पूरा काम उनको बदले में मिलना चाहिए। सो दे आर ट्राइंग टू डू दैट, बट एंड देयरफॉर जो स्किल मिसमैच होता है, वो क्वालिटी स्किल मिसमैच होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखिए, आई हैव हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर पीजी कोर्सेज इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया के बाहर जब वो अप्लाई करते हैं, स्पेशली इन द डेवलप्ड नेशन, तो उनसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपने इंटर्नशिप कितनी करी है या फिर एक जॉब छोटी मोटी कहीं करी है। अगर आपके पास ये, तब तो फौरन बुला लेते हैं। अदरवाइज दे मेक इट कंपल्सरी कि आप कम से कम 2-3 इंटर्नशिप करने के बाद हमारे पास आइए। सो दैट इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। और ये तीनों प्रॉब्लम कोई मैंने ऐसी नहीं बताई है जो आपकी नॉलेज में नहीं हो, आप सब जानते हो, बिकॉज आप लोग कॉलेज लेवल पे हैं, आप लोग बिल्कुल फ्रेश, जो लोग एंट्रेंस होते हैं मार्केट में, उनकी प्रॉब्लम सुनते रहते हैं, ठीक है। सो ये मसला होता है। ये 3 तरह के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आजकल कंसेप्ट जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द जॉबलेस ग्रोथ. Jobless growth is, it is amidst the economy, it is growing at more than 7% during, maybe since 2023. 2003 से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा रहा है, जॉबलेस ग्रोथ। नाउ व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ इज जब आप पूरी क्वालिफिकेशन के साथ, पूरी डिग्री के साथ मार्केट में पहुंचते हैं जॉब करने के लिए। अब आपको जॉब नहीं मिली, ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आपको जॉब नहीं मिल रही है, because maybe there are no opportunities and there are too many people to apply for that, तो आप नहीं वो कर पा रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप आखिर में सोचते हैं मैं अपना काम शुरू करता हूँ, ठीक है। और अपना काम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक जर्नलिस्ट है, उसने मास कॉम करा हुआ है, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो ढूंढ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद वो फिर कॉम्प्रोमाइज क्या करता है कि ठीक है, मैं अपने ही आर्टिकल छापता हूँ, बनाता हूँ और उसको पब्लिश करता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ, या फिर कभी भी मीडिया वाले, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, whenever they will invite for certain topic or article, तो फिर मैं फौरन जमा कर दूंगा। उसके बदले में उसको 400-500 रुपए ऐसे मिल जाते होंगे, आई थिंक सो। इट्स नॉट अ वेरी, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब की कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली द जर्नलिज्म, इट इज यूट्यूबर्स। आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूबर्स का। That is the people these days, everybody knows that yes, we can start our channel, और उस चैनल को स्टार्ट करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से, I think somebody is, please, you have to switch off. Dr. Aftab, I think you have to mute yourself. I think let me just. Hello, Aftab sahab. I think he's not there.
Sorry for the inconvenience, participants, but I think that was important. It was disturbing a lot. So this way we have these kinds of, हाँ, जो jobless growth की बात कर रहे हैं, YouTube channel जो run करते हैं, उनका क्या है कि इतने million views हो जाएंगे, इतने हजार views हो जाएंगे, तो they start earning money. So a sort of jobless growth ही होती है. They are not included into the people who are doing jobs or services. And neither they are employed. They are included in the data of being entrepreneur. तो उनको जब मिलता है, ठीक है, काम कर लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, फिर खाली बैठे हो इस तरह से. और जितने लोग काम कर भी रहे हैं, अगर कोई कारोबार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, we find that maybe more than 70% of the workforce, they are still engaged in informal or maybe unorganized sector. जिस unorganized या informal sector का मतलब होता है उनका registrations नहीं होते हैं, legal steps नहीं follow कर रहे होते हैं वो लोग. And here it includes all the self-employment and micro and small and medium enterprises, that is MSMEs, which do not provide a stable and assured platform. क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट की रेट पड़ेगी, इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ेगी, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका दुकान बंद हो जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा. एंड और ये सब कब हो रहा है? जब वी फाइंड दैट अ वैरायटी ऑफ इनिशिएटिव and schemes for skill development like Skill India Mission, National Skill Development Mission, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, etc. etc. इस तरह की कितनी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी बड़े लेवल पे है. So the problem cannot be, it is so huge, it is so colossal that it cannot be overlooked or ignored. But here the big question that comes to our mind that कि इतना बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिल रही है? Then the question mark comes on our education system. That is, it arises on the quality and pedagogy of our primary as well as higher education system and the quality of technical and vocational education and training infrastructure. कि क्या हमारी पढ़ाई इतनी थ्योरेटिकल है कि जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं बच्चे तो जॉब बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं. ठीक है. एंड और वोकेशनल एजुकेशन तो काफी हद तक के मिस भी होती है. And there is lack of training infrastructure, vocational education and training and development infrastructure in our colleges and in our systems. So the general, because एक चीज इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि our general education system is actually too focused on grades and marks and all the time and careers instead of being oriented towards the innovation and entrepreneurship. Maybe थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाता है किसी का. और इसमें मुझे लगता है हम सबका एक वो है, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी. हम लोग पेरेंट्स भी हैं, आप लोग जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, यू ऑल आर पेरेंट्स ऑल्सो. तो आप लोग ये बताइए कितने लोग अपने बच्चे को कहते हैं बचपन से कि आप कारोबार करोगे? ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने ये कहा है कि यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू ग्रो अप? किसी ने भी कहा है? आप यहाँ पे 33, मतलब मुझे यहाँ पे आगे 32 लोग हैं. किसी ने कहा है अपने बच्चों से कि आप जो है कारोबार करोगे, बहुत बड़ा बिजनेस करोगे और बहुत कामयाब होगे एक दिन, इंस्टेड ऑफ कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियर बन जाओ? इसके अलावा किसी ने कहा है ये बात? विशाल वर्मा सेज वेरी रेयर मैम. यस, आई थिंक यहाँ पे जो 32 लोग हैं शायद ही किसी ने कहा हो. Isn't it? The reason is that we are too focused. मुझे लगता है एक छोटा सा आपके साथ वो शेयर करेंगे that the Britishers came into India not to rule India. They came into India to start their business, to expand their business. तो देखिए कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी हिंदुस्तान में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, BIC. और उन्हीं ने जब देखा यहाँ पे इतना ल्यूक्रेटिव रॉ मटेरियल, इतना ल्यूक्रेटिव यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, ये सब चीजें, तो उन्हीं ने उनकी नीयत बदल गई. एंड दे सेड दैट ओके वी कैन डू आवर बिजनेस हियर. और हमें यहाँ पे मैन पावर भी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, रॉ मटेरियल भी बहुत है, सारे रिसोर्सेज है.
और इन्हीं ने अपने को फैलाना शुरू करा, और ये काम फैलाते फैलाते व्हाट हैपेंड, वो इतना एक्सपैंड कर गए, और उसके बाद उनको एक एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ा यहाँ पे। और वो एजुकेशन सिस्टम क्या था, अपने लिए उन्होंने लाए थे, टू प्रोड्यूस द क्लर्क्स, टू प्रोड्यूस द स्लेव्स, कि वो ऐसे करो इन लोगों को कि वो जो है जो भी पढ़े वही पढ़े और याद करके क्रैमिंग पावर इनका इंप्रूव करिए, जिससे कि जो हमारी जॉब करें उसको उसी तरह से करें वो लोग। सो एनीवेज वो सिस्टम बहुत सालों तक, अब 78 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कंट्री में अभी भी चल रहा है काफी हद तक। दैट इज, यू मग अप थिंग्स, रट लिया और उसके बाद जाके उंडेल आइए 90% आ गया, 95% आ गया, मेरा बच्चा ब्रिलियंट है एंड एवरीथिंग। बट यू नो, अगर ये कंट्री 78 ईयर्स के बाद अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम झेल रही है, द रीजन इज कि अगेन टू मच फोकस टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ अर्निंग अ लिविंग, और वो सिक्योरिटी जॉब्स में दिखती है कि वहां पे तनख्वाह हमें मिलेगी मिलेगी, वहां पे पैसे हमें वापस मिलेंगे मिलेंगे सैलरी में। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क क्या है? वो रिस्क है कि इनकम होगी कि नहीं होगी, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस हो सकता है। And therefore, we can say that maybe we can say here that while investment जो theoretical हमारा वो है, उसमें हमें जो है क्या देखना चाहिए कि क्या theoretical को हमें conceptual कर पाएंगे, सॉरी प्रैक्टिकल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये सेकेंड हाफ था हमारे प्रेजेंटेशन का, वेयर वी अंडरस्टूड दैट क्या क्या सीन है हिंदुस्तान में पॉपुलेशन का, एजुकेशन सिस्टम का, और एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स का, इम्पैक्ट का, कि जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ये कितना कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। वो रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं अपने चारों तरफ। क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होने देते, इवॉल्व ही नहीं होने देते बचपन से बच्चे को, कि नई चीज नए तरह से कैसे पढ़े, या नए तरह से किस तरह से चीजों को निकाल के लाए। उसका सिर्फ सारा माइंडसेट रटने पे, होमवर्क करने पे और इम्तिहान देने पे होता है। एंड आई एम श्योर यू ऑल बीइंग अ पेरेंट, यू नो, यू ऑल अग्री विद मी। तो ये तो था, we understood what an entrepreneurship is, what is, and we also understood what is the Indian scenario, why there is lots of unemployment, what is the flaw in our education system. So now to come out of this, I should say, जो पुराना सड़ा गला जो एक सिस्टम था, उसको चेंज, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, जिससे कि आगे की जनरेशन जो है उतना खमियाजा ना भुगते या उसका नुकसान ना वो करे, ना उठाए। तो here maybe we can say that yes, here that is the third part. Is that not the third part, but maybe a small, I would like to intervene here with the government's initiative, because government has realized this, that this system is becoming obsolete. It needs refreshment, it needs to be restructured, and therefore they have come up with lots of initiatives to promote the entrepreneurship. और इनका जो startup जो main focus है वो है simplification and handholding. Simplification means all the procedures need to be simplified. सारे procedures को simplify करना पड़ेगा. I remember once, many years back, I think almost 15 years back, I was working on a research paper on entrepreneurship, you know, entrepreneurial initiatives in India and closures. So what we find, World Bank की एक रिपोर्ट थी जिसमें वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल क्लियरली ये बात कही थी, मतलब डेटा के साथ उसको प्रूव करी थी कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरल ब्रेन है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को एस्टैब्लिश करने में इतने कॉम्प्लिकेशन है, इतने पेपर वर्क है, बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, दैट इज लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन लेना, अपने आप में देवर, आई थिंक व्हाट आई वर्कड आउट, इट वाज ऑलमोस्ट 182 स्टेप्स दैट हैड टू बी कंप्लीटेड बिफोर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और इसी की वजह से, अगर आपने नाम सुना हो, एलन मित्तल, ही इज द स्टील किंग इन इंडिया, but he left India and he started his business in he started from Malaysia and Thailand, Indonesia, Malaysia, उस बेल्ट में उन्हीं ने पहला स्टील का प्लांट जाके लगाया, क्योंकि इंडिया में इतना वो डीमोटिवेट हुए, दैट इज 182 प्रोसीजर्स,
almost it becomes, you know, the person becomes hopeless. और वो भी bureaucratic system और red tapeism में वो बंदा जो है वो चुपचाप अपना कारोबार करने आता है, लेकिन वो फिर डिमोटिवेट होके बंद करके चला जाता है. अच्छा, अगर वो बंद करना चाहता है बीच में, तो उससे ज्यादा प्रोसीजर है उसको वाइंड अप करने में, उसको बंद करने में, खत्म करने में. एंड देयरफॉर यू नो द गवर्नमेंट हैज, अभी से नहीं लेकिन काफी सालों से, दे स्टार्टेड making things more simple, making things more easy, जिससे कि कम से कम जो है उस पे वो हो. So the government is focusing on simplification and handholding, funding support and incentives, and industry academia partnership and incubation. तो तीसरा पॉइंट हमारे से रेलेवेंट है. So we just check out that how they go for handholding, how they go for, this is the whole, you know, whole chart that explains or exhibits everything. That is your legal support. Handholding में they provide the legal support. They have simplified the procedure to a very, very large extent. और इसमें सबसे बड़ी जो बात हो गई है, now they have made it available online. तो जो टेबल टू टेबल जाते थे, लोगों से मिलते थे, फिर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आप ना सबसे मिलते हैं, दूसरे के एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, तो वो सब अवॉइड हो गया ऑनलाइन से, कि आप अपने घर में बैठेंगे, आप अपना लैपटॉप खोलेंगे और आपने इंटरनेट ऑन करा और आपने अपने को लीगल रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी बॉडी से रजिस्टर करना है, आपको कारोबार किस तरह से, कौन से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लीगल फॉर्म्स, आप उसी सारा काम इंटरनेट पे हो जाता है. और exit procedure भी. So here, and they, it's not that they leave you alone on the internet कि internet बहुत अच्छा चल रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता. They also provide the counseling or maybe you know help facility, care, टोल फ्री नंबर पे हेल्प वेबसाइट्स भी हैं, उस पे आप मदद भी ले सकते हो. Then there is funding and incentive that has been promoted. For example, SIDBI is the, I think, umbrella bodies जो कि small scale और इन सबको जो है आपको ये provide करती है. And there is a credit guarantee, there are tax holidays, tax exemption, etc., etc. Coming to the third part, that is industry academia partnership. That is, it is being, you know, now that they understand कि ये जो youth है वो निकल के आता है सीधे कॉलेज से, तो इसको क्यों ना हम मोटिवेट करें उसी प्लेटफॉर्म पे निकलने से पहले कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्ट कर सकता है. एंड देयरफॉर government is spending lots of money on different colleges, universities in order to start the innovation centers, incubation centers. And in these incubation center, what is happening in an incubation center? Actually what is happening is that they are nurturing or maybe trying to strengthen the person or the student who wants to start their own business. तो जो बच्चे कारोबार का आइडिया रखते हैं, या फिर इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे आर वर्किंग इन द लैब, दे हैव गुड प्रोडक्ट आइडियाज, दे हैव गुड सर्विस आइडियाज ऑल्सो कि इसकी सर्विस हम कर सकते हैं, लेकिन उनको उसको मेच्योरिटी पे लाने के लिए एक साधन चाहिए. वो साधन होता है इंक्यूबेटर्स. इंक्यूबेटर क्या होता है? जिसमें जब बच्चा पैदा होता है, कमजोर होता है, उसमें रख दिया जाता है, 2-3 दिन में जब वो वापस एनर्जेटिक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसको वापस निकाल दिया जाता है. तो इसी तरह से इंक्यूबेटर्स का यूनिवर्सिटीज पे भी काम रोल है. That is all the people, all the students who are working hard to produce the goods or services, they are helped into these incubator centers by maybe providing the financial assistance through various schemes of the government, maybe through the bankers, maybe they teach him the marketing skills और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, maybe the legal issues की जो भी उसको जरूरत है वो हेल्प प्रोवाइड करें. And finally, they become strong and they go into the field. They just jump into the field to start their own business. This is the role of incubation center. And it's not only the incubation center. Government की अक्सर काफी openings आती रहती हैं, काफी स्कीम्स आती रहती हैं कि आप लोग कारोबार करिए. और कारोबार कराने के लिए वो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में maybe फेस्ट, maybe startup competition, maybe some other schemes, maybe lectures, and they also they इसके लिए पैसा देती है, आप लोग ये कराइए. उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है
इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो डेवलप करा दिया गया है. That is, it is almost compulsory for almost all the departments to invite twice or thrice or something, during the semester to the industrial people from the industry in order to share their experiences, share their insights with the students, so that the student gets motivated. आप देखिए अगर साइंटिस्ट बनना है तो आप बड़े साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं, उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, और या फिर आपके कॉलेजेस में आप अपने रोल मॉडल देखते हैं उन्हीं में. वो चीजें एंटरप्रेन्योर को अगर कैसे दिखाई जाए, एंटरप्रेन्योर क्योंकि इतने ज्यादा विजिबल नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एंटरप्रेन्योर को बाहर से बुलाया जाता है कि आइए आप जो है ये चीज संभालिए और मेरे बच्चों को ये अपने एक्सपीरियंस से फायदा पहुंचाइए. So this is the knowledge or maybe exposure or the facilities that is provided by the government these days, and the list is exhaustive. जो योजनाएं हैं, निधि योजना, I should say प्रधानमंत्री योजना, ODOP, ये सारी जो है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं. So if you want to take advantage of such schemes, you can always go on the website, open the link, और आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे इनको ज्वाइन करना है. Now coming to the last part, that is to understand whether an entrepreneurship is a soft skill or a science or an art. So how will you define? इतना थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के बाद, how will you define what an entrepreneurship is? I want an answer from you. Yes, please. You don't have to listen only, you have to respond also. Yes, please. What do you think? Is it a soft skill? Is it a science, or that in which you have to, learn the theories, and then you have to maybe learn the things in a very scientific way, or it can be an art which can be implemented, which can be learnt up by practicing? Please, I want your response. Any one of you. Nobody wants to talk? I think, madam, it is a concept. Entrepreneurship is an art. One at a time. Let's one at a time. Suhaib, yes, please. Yes, ma'am. Ma'am, I think this is an art that through experience, an entrepreneur, he at first run his business, and through experience, he gain more and more profit. So we can say, just like an artist, through his experience, he become skillful in his art, or you can say drawing a picture. So just like a businessman and entrepreneur. So this is an art, or skills have been developed through his experience. So this is my opinion. Okay, very good, Suhaib. Yes, Mr. Rajiv. Ma'am, I think this is an idea to do something new. So which category will you place this into? An art or a science? Yes, Rajiv, I can't hear you. I think, ma'am, it is a mix of science and arts. Okay, very good, very good. It's a blend of all. Vishal Verma says it's a blend of both the things or all the things. Because see, some people are born entrepreneurs. They are talented. Some people are born producers. And a producer knows how to produce the goods and service, but he does not know how to put it into the market. So for example, in engineering students का क्या होता है? वो प्रोडक्ट पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे काम कर रहे होते हैं लैब में, और करने के बाद वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं एट द लास्ट सेमेस्टर ऑफ द इंजीनियरिंग, और लेकिन उसके बाद उनको ये नहीं पता होता है इसको मार्केट तक कैसे लाए. तो अगर ये जो है साइंस और आर्ट का ब्लेंड है, क्योंकि अगर ये चीज इनको सिखा दी जाए
तो वो ऑटोमेटिकली सीखेंगे, क्योंकि जो मेन चीज है दैट इज प्रोड्यूसिंग अ गुड एंड सर्विसेज वो उनको आता है। तो इसलिए जो है वी कॉल इट एज अ मिक्सचर ऑफ ऑल। इट कैन बी अ साइंस, क्योंकि काफी थ्योरीज हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो इंसान को पढ़ना होता है, दैट अप्लाइज इन द मार्केट। और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मार्केट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट बिकम्स एन आर्ट। and some people who are born with all these things की गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन अगर वो चीज नहीं, तो वो एक सॉफ्ट स्किल है जो उनके अंदर डेवलप कराई जा सकती है। एंड वो कराई जाती है बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें इनको सारा बेसिक चीजें बताया जाता है, A to Z, कि ये बेसिक चीजें ऐसे रजिस्ट्रेशन कराइए, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए। वो जब सीख जाते हैं देन दे आर रेडी टू कम ऑन द ग्राउंड टू रन देयर ओन बिजनेस। तो ये इसलिए जो है ये एक सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर, अगर हिंदुस्तान में हम ये बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम है, और एजुकेशन सिस्टम में जबरदस्त मिसमैच है, प्रैक्टिकल वो नहीं है, मतलब लर्निंग नहीं है, तो फिर क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए? जो इंडियन प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के इतना मेहनत करने के बावजूद, इतनी स्कीम्स निकालने के बाद भी अगर सक्सेस रेट नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो देयर आर सर्टेन सजेशंस व्हिच आई हैव कम आउट विद, maybe that what more is needed, no doubt न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत जो करने की जरूरत है, we can say that always that while investment in human capital are very critical, very important to realize the sustainable, economic growth, higher technical and vocational skills can also improve the competitiveness of the economies and contribute to social inclusion, maybe productivity, a decent employment for all, and poverty reduction. तो अगर जैसे जैसे कारोबार बढ़ता जाएगा, कारोबार और इम्प्रूव होता जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिडक्शन होगा, एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी सोसाइटी में, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सारी चीजें एक साइकिल में होती हैं, वो होती चली जाएंगी। एंड व्हाट वी फाइंड दैट इसमें जो है, जो स्किल डेफिशिट इन इंडिया जो है इस वक्त, स्किल डेफिशिट क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं हमारे क्या। और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है, व्हाट डज इट रिक्वायर्ड, इसकी क्या जरूरत होती है? इन इंडिया इट रिक्वायर्स अ पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क which is based on a partnership between the government, industry, providers of educational and training services, and the civil society. तो देखिए यहाँ पे एक पार्टनरशिप की जरूरत है ये चेंज लाने के लिए। वो पार्टनरशिप किसमें होनी चाहिए? गवर्नमेंट में, इंडस्ट्री में, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में, और सिविल सोसाइटी में। सिविल सोसाइटी मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है, या पार्टनरशिप के लिए बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ मैं, क्योंकि जब तक माइंडसेट हम लोगों का एज अ पेरेंट्स नहीं चेंज होगा, एक सिविल सोसाइटी का माइंडसेट नहीं चेंज होगा कि नहीं पहले सर्विस, पहले इंजीनियरिंग, जब वो बच्चा बेचारा 6 बार इंजीनियरिंग के अटेम्प्ट में या मेडिकल के अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, तब उससे कहते हैं चलो सोच लो फिर बिजनेस कर लो। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है जो बहुत ही पॉपुलर है हम लोग क्या, वो मैं बता रही हूँ आपसे, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये चेंज करने की जरूरत है, और ये चेंज तब होगी जब इसमें गवर्नमेंट अपनी जो है, मे बी गवर्नमेंट हैज टू प्रमोट, गवर्नमेंट हैज टू गिव सब्सिडीज, गवर्नमेंट हैव टू गिव इनिशिएटिव, इंसेंटिव्स, और ये कॉलेजेस को, और एक इंडस्ट्री लिंकेज जो गवर्नमेंट ने बहुत ही स्पीड में अब काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हर कॉलेजेस में, हर उसमें इनोवेशन सेंटर, एंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए, आप वोकेशनल प्रोग्राम कराइए, इन सब चीजों पे एम्फेसिस ज्यादा है। तो जब इन सब की पार्टनरशिप हो जाएगी तो आई थिंक दे कैन ऑलवेज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। काफी स्टेप ऑलरेडी लिया जा चुका है, गवर्नमेंट काफी मेहनत करी, बट स्टिल आई थिंक एक चीज मैं कहूंगी कि एक अर्नेस्ट एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। व्हाट डज दिस मीन? हिंदुस्तान में मैं देखती हूँ स्कीम्स बहुत है, पॉलिसीज बहुत है, कोई चीज की कमी नहीं। यूरोप में जो पॉलिसीज होंगी, जो लॉज होंगे, वो हिंदुस्तान में भी होंगे, जो यूएस में होंगे वो हिंदुस्तान में भी होंगे, लेकिन बस क्या नहीं होता है, उन चीजों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन या फिर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। तो वो अगर नहीं रहेगा तो बहुत ही बड़ा मसला आ सकता है।
After that, the second point maybe I can say that the higher education, it is waiting for a revolution, a heavy revolution, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, अगर उनको उसी टाइम नहीं सही रास्ता दिखाया गया तो आगे चल के ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है. So we say ना कि tap them when they are young. Tap when they are young, because जब वो young होते हैं, इसी मोड़ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका कारोबार जो है वो सेट होना है या आपको सर्विस करना है, या अभी आपको डिसीजन लेना. तो it needs we need to blend our theoretical and practical and conceptual knowledge together. जो थ्योरी है उसको स्किल से ब्लेंड करना पड़ेगा. और मे बी मेरा एज अ प्रोफेसर आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो लास्ट सेमेस्टर हमारे जितने कोर्सेज है उनको, चाहे वो साइंस साइड के हों, चाहे वो आर्ट साइड के हों, चाहे वो सोशल साइंस के हों, कॉमर्स के हों, मैनेजमेंट के हों, कोई भी हो, आई थिंक in addition to the compulsory field work, रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके साथ साथ जो है कुछ एक चीज और ऐड करी जा सकती है, दैट इज द स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन ऑफ स्टार्टअप. दैट इज ठीक है, अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, इस सब्जेक्ट में आप अगर बिजनेस करना चाहोगे तो इस सब्जेक्ट को कैसे आप यूज करोगे, कैसे आप यूटिलाइज करोगे, ये चीज जो है बताने के लिए, ये चीज जो है फिर क्या होता है लास्ट सेमेस्टर में उसको एक मौका दिया जाता है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए. और अगर वो सेटअप अच्छे से हो जाता है, उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस पे उसको मार्क्स दे दिए जाए. और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है. ये देखिए डेवलप नेशन में बहुत जगह प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहा है ये प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव हर्ड अबाउट एन इक्वल यूनिवर्सिटी इन स्विट्जरलैंड, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये. Here they have social sciences courses, but basically they are famous for engineering and artificial intelligence and IT subjects. लेकिन यहाँ पे जब बच्चों को लास्ट सेमेस्टर में आते हैं तो शुरुआत जब ऐसे करी गई कई साल पहले कि आप जो है अपना एक स्टार्टअप भी कर सकते हैं, क्योंकि लैब में आपने प्रोडक्ट काफी हद तक के बना लिया है और ये मार्केट के लिए ऑलमोस्ट तैयार है. तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें तो व्हाट दे डिड, द स्टूडेंट डिड दैट, यस सम पीपल ऑप्टेड कि हम स्टार्टअप करेंगे, कुछ लोगों ने कहा नहीं मैं ऐसे प्रोजेक्ट ही करूंगा ऐसे. Now what happened once he started his business, उसको बैंकिंग की, लीगल की सब फैसिलिटी उनके यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने प्रोवाइड करी. They call the bankers, they call the marketers, they call the maybe chartered accountants to help this student to formally understand what it means and how the business can be run. और फाइनली क्या होता था, जितना बिजनेस उसका सेटल हुआ उस बच्चे का, उसके बेसिस पे सेमेस्टर जब खत्म होता था, ही वाज गिवन स्कोर्स, ही इज गिवन मार्क्स. एंड ग्रेजुअली ये शुरुआत करी गई थी बड़ी इनोवेटिव आइडिया के साथ, लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिनों में देखा गया कि जो स्टार्टअप वाला ऑप्शन है वो ज्यादा बच्चे लेने लगे in comparison to those who were going for simply project work or maybe training part. Because the students who started up their business, तो वो खत्म तो करेंगे नहीं जब इतनी मेहनत से स्टार्टअप करा है, तो वो फिर उनका ये मानना था कि इसी बहाने हमारा एक ऑप्शन बिजनेस का चालू हो जाता है. कभी आगे फेल होंगे तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल ठीक चल रहा है, स्टार्ट कर रहा है इतनी मेहनत से, लेट इट गो लाइक दिस ओनली. तो सी व्हाट ब्यूटीफुल रिजल्ट, व्हाई कांट आवर कंट्री आल्सो अडॉप्ट द सेम थिंग, दैट इज ऑल. और लेकिन ये प्रैक्टिस अभी आपके अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और टिस टाटा इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी हो रही है, चल रही है. तो ये हम क्यों नहीं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करें? तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टेप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और वहाँ पे एक चीज और है, व्हाट आई फाइंड व्हेन आई गो थ्रू द सिलेबस एंड मेथोडोलॉजी, वी फाइंड दैट कि वहाँ पे हर सब्जेक्ट बड़े ही प्रैक्टिकल तरह से पढ़ाया जाता है. जैसे अकाउंट्स का पेपर है, वहाँ पे अकाउंट्स को पढ़ाया जाएगा कंपनीज में भेज के बच्चों को, और उनके अकाउंट्स की बुक एक्सप्लोर करने के लिए, और बुक्स एक्सप्लोर करने के बाद उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो अपने उसको प्रैक्टिकल उसमें लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह से वी फाइंड दैट जैसे कि वहाँ पे वो बुक्स देखेंगे,
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस देखेंगे तो उनको प्रैक्टिकल में लगेगा अच्छा ऐसे करना, अच्छा ये तो मैंने वो वाला प्रिंसिपल याद किया था वो ऐसे। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप जो पेपर है वो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे मैं श्योर प्रोग्राम करा रही हूँ, वो वहीं का मैं लेके आई हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रमोट करा जाएगा। तो वी विल डिस्कस इट लेटर। और तो ये थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल का जो ब्लेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रैक्टिकल की तरह पढ़ाना है सब्जेक्ट को वो बहुत जरूरी है। Secondly, we find a big gap for entrepreneurship subject at school level also. स्कूल में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कोई भी पेपर एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं पढ़ाया जाता है। आईबी बोर्ड्स जितने हैं इंडिया में रन कर रहे हैं उनके पास है, बट दे टीच इट वेरी प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल दे ऑर्गेनाइज द फेट, हम लोग ने भी स्कूल में बचपन में आई रिमेम्बर वी ऑर्गेनाइज फेट्स एंड वी यूज्ड टू अर्न मनी, और उसमें कुछ ऐसा होता था जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा, और वो पैसे जो कमाता था वो चैरिटी बॉक्स में उसको मे बी 70% 80% देने पड़ते थे, बाकी 10-20% एज अ मोटिवेशन उस बच्चे को दे दिया जाता था। मेरे स्कूल में तो होता था बचपन में, ठीक है। इसी तरह से अभी आईबी बोर्ड में मैंने देखा कुछ हमारे रिलेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको जो कोई प्रोडक्ट आइडिया दिया जाता है, ठीक है, वर्चुअल सपोज दिया गया है कि ठीक है आप जो सपोज ये बना रहे हो, तो वो ड्राइंग करता है उसका बनाता है, और उसके बाद ये बेचो आप एक दूसरे को, कितने का बेचोगे। एंड यू नो जैसे जैसे ऊपर के क्लास में आते हैं तो उनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले प्रोडक्ट होते हैं जो वो बना रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं ये सबको दिखाइए, आप इसको बेचेंगे आप, तो किसी को कोई चीज पसंद आती, किसी को नहीं पसंद आती है, इसको नहीं पसंद आई तो आप पूछिए, कंज्यूमर है, मतलब अपने दोस्तों में ही स्कूल में बच्चों को कहते हैं कि ये सपोज ये कस्टमर है, अब ये आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट में क्या कमी है। So why can't this be introduced as a paper, practical paper in every schools in the country? That is needed. तो ये मेरा एक सजेशन schools के लिए है। And you know we have to, उसके बाद हमें गवर्नमेंट को या कॉलेजेस में और ज्यादा R&D को फैसिलिटेट करना पड़ेगा और पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे जितनी ज्यादा अच्छी रिसर्च होगी, और थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल PhDs नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, इंटरनेट खोला, डेटा निकाला, कॉपी पेस्ट करा, रिसर्च हो गई, टूल्स लगा दिए, रिसर्च हो गई। नो, दिस इज नॉट रिसर्च। Research should be that they should go into the field, they should talk to people, they should learn in the industry, and then PhDs होनी चाहिए। तो ये एनहांस करना पड़ेगा, इसको और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा या रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एंड यू नो देयर शुड बी ओवरऑल रिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स हॉलीडेज, ये सारी चीजें। कुछ और भी सजेशंस हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड में भी we can take up that maybe we should give practical experiential or practical learning practice of a student, that is जैसे मैंने कहा अकाउंट्स के लिए भेजने के लिए। तो इसी तरह से एक श्योर प्रोग्राम है, जैसे ये है, ये अभी जिक्र किया था आफ्ताब साहब ने भी कि मैं इसको साल में 1 या 2 बार कराती हूँ अपने उसमें। इट इज यू नो MOU, I have signed an MOU with the University of Houston, and the program is called SURE, which the full form is Stimulating Urban Renewal Through Entrepreneurship. Now what happens that here यहाँ पे हम कॉमर्स के बच्चों को एज अ स्टूडेंट उनको लेते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं अदर पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि अलीगढ़ AMU के आसपास है, बाहर है, छोटे मोटे दुकानदार हुए, छोटे मोटे प्रोडक्ट का आइडिया है उनको लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, बिजनेस आइडिया है लेकिन वो बना नहीं सकते, उनके पास फैक्ट्री नहीं है, या फिर कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो हम इन लोगों को इनवाइट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एन इम्पोर्टेंट कॉल इज I'm sorry, I'm so sorry, it was an urgent call. So here, you know, in this program, what is happening that we are allowing the people from outside university to join and learn what is an entrepreneurship. इसमें कई sessions होते हैं, marketing, accounting, legal, banking,
एंड गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी एक सेशन होता है कि क्या क्या पॉलिसी उपलब्ध है और आपको कैसे सहायता कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो लोग थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं, गरीब हैं, बैंक जाने में डर रहे हैं, तो हम बैंकर्स को बुलाते हैं और उनका जो अगर लोन चाहिए होता है उसका काम कराते हैं। मार्केटिंग में उनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी तरह की मार्केटिंग है उसको सिखाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू नो व्हेन दे आर टॉट, तो उनको जैसे बैंक जाना है तो बैंक कौन लेके जाएगा? हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट लेके जाएंगे, बिकॉज कॉमर्स की ये कॉमर्स की बच्चों की थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ट्रांसफॉर्म हम लोग करते हैं। दैट इज, आपने सब पढ़ लिया, रट लिया, लेकिन अगर किसी और का बिजनेस आप शुरू कराओगे, उनकी हेल्प करोगे, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? और वो बच्चे, पता है, प्रोग्राम 12 हफ्ते तक चलता है, हर हफ्ते में एक सेशन होता है, फिर वो बैंक ले जाएंगे, DIC ले जाएंगे, मार्केटिंग में फिर लीगल सेशन जब होता है। तो हमारे पिछले प्रोग्राम में 55 लोग थे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, उसमें से 27 लोगों का उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराया, MSME पे कराया, या फिर GST पे कराया, या फिर उनका ट्रेडमार्क हम लोग ने रजिस्टर कराया, एंड it is our students, they feel so confident at the end of the program कि उनको प्रैक्टिकल होती है, उनको लगता है हमने किसी का कारोबार शुरू करा दिया, ये तो हम सिर्फ रट रहे थे किताबों में। और जब वो प्रैक्टिकल, जैसे एक लैब में प्रैक्टिकल करना होता है ना, वैसे ही कॉमर्स और मैनेजमेंट के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो दिस इज हाउ द श्योर इज हेल्पिंग, तो जो हमारे और सजेशंस थे उसमें एक ये भी था कि प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दी जाए, और ये सब चीजें प्रमोट करने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है लेक्चर्स के लिए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप अपने कॉलेजेस में बुलाइए, बिकॉज यू नेवर नो, ये जो बच्चे होते हैं ना, दे हैव वेरी वेरी रॉ माइंड, और पता नहीं किससे इम्प्रेस हो जाते हैं, और किससे हो जाते हैं, और वहीं पे माइंड बन जाता है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं आमिर खान बनूंगा, मैं टाटा बनूंगा, मैं फला चीज बनूंगा। तो वंस आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों को लाइए उनके बीच में, उनसे फिजिकल इंटरेक्शन करवाइए, मिलवाइए, और उसके बाद मे बी देर आर सो मेनी स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज, मे बी माइक्रोसॉफ्ट का केस है, मे बी एप्पल ओनर का, बिल गेट का आपका वो है, तो सबकी बड़े बड़े लोगों की केस स्टडीज लाइए, इंटरेक्शन कराइए, लोकल एलिमनाइज जो है, लोकल जो कारोबारी है, उनसे मुलाकात कराइए, वो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है वो भी फेस करेंगे, लेकिन उसके बाद के रिजल्ट भी फेस करेंगे। Maybe you can invite your venture capitalist, angel investors, and these kinds of people to your colleges or universities to promote this. So Sure is one of the program जो कि इस तरह से motivate कर रहा है, cultivate कर रहा है entrepreneurial एक ecosystem अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चारों तरफ। And we very proudly I tell you that अभी तक ये 4th अब होने वाला है, लेकिन 3 हम कर चुके हैं, 3 प्रोग्राम, और उसमें जो है almost 180 participants got registered and they got trained, जिसमें कि 40 से 35 से लेके 40 लोगों ने अपने कारोबार शुरू कर लिए हैं। They have already got registered, they are already running their small businesses, maybe after 4 or 5 years, क्योंकि एक gestation period होता है। देखिए, कारोबार में या किसी भी करियर में फौरन आप तरक्की नहीं करते। आप टीचिंग में भी आते हैं तो आप पहले लेक्चरर बनेंगे, पहले एडहॉक पे, डेली वेजर पे, ऐसे हम लोग काफी सालों तक काम करते हैं, फिर परमानेंट होते हैं, फिर हम lecturer या assistant professor, then associate, then we come and become a professor. It's not a one day journey. Similarly, in entrepreneurship, it's the same thing. The day you start, it takes 3-4 years to establish your feet in the market, और फिर धीरे धीरे gradually आप बढ़ते रहते हैं, improve करते रहते हैं अपना entrepreneurial career में, and maybe after 20 years you are a strong businessman standing in the market. ठीक है ना? So I think with this I will end up my session. Maybe I would say that I encourage and motivate all of you to please जितना भी ज्यादा आप मोटिवेट करिए अपने पार्टिसिपेंट्स को, इस तरह के प्रोग्राम्स कराइए, इस तरह की वर्कशॉप्स कराइए अपने यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, so that you can promote and help people to start their own businesses. And because this is very important nowadays in the contemporary scene, or career option, बहुत strong career alternative option है available.
So with these words, I close up and I invite anybody, if you want to discuss something, please do so. The floor is open to you now. Participants, if you have any questions or query or observations, you can share with ma'am. Vishal Verma is asking that how can we join, ma'am? Vishal, may I know in which subject you are and in which city you are? Yes, Mr. Vishal. Ma'am, I'm working in the Department of Commerce and living in Lucknow city. That's from Lucknow University. Yes, ma'am. I'm a working faculty Okay. of this university. Oh, very good, very good. Good to meet people, you know, from different platforms. So, Mr. Vishal, actually, this is Is a it online? physical program. Okay. No. Because online is not so impactful. It is not that effective. कोई भी सेशन अगर ऑनलाइन कराया जाता है तो क्योंकि ये फिजिकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री के लोग आते हैं इसमें, कोई भी टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं और वो जब बताते हैं ना तो वो एक इंटरैक्टिव सेशन ज़्यादा होता है। और क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट ज़्यादातर वो होते हैं जो कारोबार या तो कर रहे होते हैं या मतलब सक्सेसफुल नहीं है अभी कर रहे हो या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनकी क्वेरी बेस्ड सेशन ज़्यादा होते हैं। और हमारा जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो इनको एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पे काम करते हैं कि जो बातें उनकी रह गई हैं समझ में आना या इम्प्लीमेंट, सपोज उद्यम पोर्टल हमने पढ़ा दिया, ऑनलाइन उनको दिखा भी दिया, कॉर्पोरेट लॉयर्स आते हैं वो चीज सिखाने, उन्हीं ने सिखा भी दिया, अब करना है जब रजिस्ट्रेशन तो वो भूल गए, तो हमारे कॉमर्स के बच्चे फिर हेल्प करते हैं। तो ये पूरा ही प्रैक्टिकल फिजिकल ही हो सकता है, ऑनलाइन नहीं हो सकता है ये, वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसको इस प्रोग्राम को इस तरह के प्रोग्राम को लाना चाहते हैं तो आप हमसे मुलाकात करिए, बात करिए, तो वी कैन वर्क इट आउट इन सम वे और द अदर। Maybe that will help your students a lot. Yes, please. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, Dr. Ashraf, yes, please. Yes. I think it was really an inspirational talk. Thank you. Certainly. And I think that especially in the final semester, that in place of the project, if we are going for the startups, that's something that can mature, that can really take place, and that will certainly contribute in this direction. See, But I think, ma'am, yeah. I was just saying that it is not a hypothetical thing that I said. It is very practical and it can be implemented, you know, because my daughter was studying at Azim Premji University और उनका मास्टर्स उसने किया था, मास्टर्स इन डेवलपमेंट, एंड दिस सब्जेक्ट फोकसेस ऑन सोशल वर्क्स एज वेल एज पॉलिसी मेकिंग, ई गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में आप कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है, पॉलिसी कैसे बनाई जाए। एंड आई रिमेम्बर 2 साल 4 सेमेस्टर, every semester they had field work, they had to go among the people जिनके लिए पॉलिसी फ्रेम करना है, उनके साथ उनको 20-25 दिन रहना पड़ता था और उसके बाद वही उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनती थी और वही उनका जो है सारी चीजें होती थी। तो बच्चे जो है जब रूट लेवल पे जब वहां रहते थे तो उनको समझ में आता था, अरे ये मसला है, इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे जरूरी है, गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर है, तो उसको बिल्कुल रूट लेवल पे लाके असली सिचुएशन से बच्चों को अगर वाकिफ करा के पढ़ाया जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि और क्रिएटिविटी एंडोर्स होगी इसमें। Yes, please. Yes, ma'am. I think the social perception about employment in India, I think that's also a British colonial legacy. That I guess. I think that's one of the biggest hurdles in Exactly. switching towards entrepreneurship over the employment. Exactly. We are still, you know, we are thinking of that. आप देखिए अभी तक हम लोग लेटर लिखते हैं, हमारे स्टूडेंट लेटर लिखते हैं, उनको सिखाया जाता है योर ओबीडियंटली,
Your faithfully. Yes, It yes. was always, you know, expected from the slaves to write it like that. I beg to say. Yeah, we are carrying on that. बच्चों को टोकते भी नहीं है लेकिन आज से आप लोग अपने सब बच्चों को टोकिएगा. मैं हर सेशन में, हर सेमेस्टर में बच्चों को डांटती हूँ, मना करती हूँ. नो, राइट बेस्ट रिगार्ड्स, मे बी, यू नो, बहुत ऑल्टरनेट वर्ड्स है. व्हाई ओनली फेथफुली एंड ओबीडियंटली? तो ये है, कॉलोनी इम्पैक्ट तो है. जी अशरफ साहब. यस मैम, यही मैं समझता हूँ कि जो सोशल परसेप्शन है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, आई थिंक इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हर्डल है. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द इंस्पिरेशन दैट फोर्सेस द स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर दिस थिंग. जिस एज में वो कुछ कर सकते थे, जैसे अब कोशिश हो रही है एनईपी वगैरह में ये चीजें आ रही है, जी, जिस एज में वो कुछ कर सकते थे तो उनके पीछे सोशल प्रेशर दूसरा था, तो वो कुछ कर नहीं पाए उस दौर में. सो आई थिंक इसके लिए किस तरह से कोशिश की जा सकती है कि इस परसेप्शन को चेंज किया जा सकता है, वेदर इज इट पॉसिबल और नॉट? देखिए, सबसे टफ काम होता है परसेप्शन चेंज करना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड इट टेक्स इयर्स. और अभी 78 साल हो चुके हैं, 78 इयर्स हो चुके हैं. तो इसीलिए मैं बार बार इसको एंडोर्स करती हूँ कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी. जब तक वहां से जरूरत, मतलब देखिए मार्केट में क्या होता है, जो डिमांड होती है सप्लाई उसी तरह से करी जाएगी. तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप और उस पे काम नहीं करेंगे, डिमांड, अपने बच्चों को नहीं मोटिवेट करेंगे और स्कूल से नहीं डिमांड करेंगे कि नहीं हम आपके नहीं पढ़ाएंगे, आपके एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई फोकस नहीं है. और आईबी बोर्ड में आप देखिए ना, एंड देयरफॉर दे आर कमिंग आउट विद क्रिएटिव आइडियाज, और वो कारोबार की तरफ जाते भी हैं बच्चे आगे चल के. स्टार्टअप्स का उनका दिमाग होता है कि हम स्टार्टअप्स करेंगे. आई हैव अ नीस नेफ्यू. He is in class 4th and he is studying in Bangalore in IB board. He always often tells me that no auntie, I'll be doing my own business. I'm not going to look for job. That means देखिए कंडीशनिंग कहीं ना कहीं बचपन से जब काउंसलिंग होती है तो बच्चे वहीं से माइंडसेट बनाते हैं, अपना डेवलप करना शुरू करते हैं. तो सोसाइटी में हमें, और बीइंग अ टीचर, आई थिंक we should have motivational sessions and lectures for them. जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाइए, उनके लेक्चर्स कराइए, आप रोल मॉडल्स और केस स्टडी सेशंस करा सकते हैं. बच्चों को एक्सरसाइज दीजिए कि कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिससे आप बहुत मुतासिर हैं, आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं, एंड दे विल डू, यू नो, दे विल ब्रिंग. आप भी इमेजिन नहीं कर सकते वो इतने अच्छे अच्छे लोगों के नाम निकाल के लाएंगे. बट वंस वो जब होमवर्क करते हैं उस पर्सनालिटी के नाम को निकाल के लाने के लिए, उसमें वो खुद डिटेल स्टडी करते हैं इसी बहाने, तो दे गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ स्टडी ऑल्सो. तो ये कुछ बीइंग टीचर्स, जो मैं कह रही हूँ ना कि ये इस सेशन का मकसद ही यही होता है कि बीइंग टीचर्स हम लोग कैसे, सिर्फ एक माइंडसेट भी चेंज आप करा दिए. जरूरी नहीं आप किसी का कारोबार शुरू कराइए, जरूरी नहीं कि हर आदमी श्योर की तरह कोई प्रोग्राम करा पाएगा, या अगर आप कराना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, वी कैन कोऑर्डिनेट ऑन थिंग्स. लेकिन अगर ये जो है ये चीज, मतलब हम अगर सिर्फ वर्ड्स, माउथ पब्लिसिटी और वर्ड से ही बच्चों को मोटिवेट करें तो वो अपने आप, और अपने घर से शुरुआत करें हम लोग. व्हाई नॉट फ्रॉम आवर ओन हाउसेस, यू नो, आवर ओन किड्स. तो यहाँ से चेंज आएगा, तभी परसेप्शन बदलेगा, जब ये देखा जाएगा कि भाई. और आप देखिए ना, अभी स्टार्टअप्स के, इंडियन सक्सेस रेट वाले स्टार्टअप्स के केस निकालिए, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ इम्प्रेसिव केसेस जो यंग बच्चों ने करा है, जो यंग बच्चों ने अचीव करा है. दैट शुड बी टेकन अप एंड स्टडीड, है ना. Thanks a lot, ma'am. My pleasure. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Participants, if any question? Okay. Thank you, ma'am, for your this. Thank you so much. I will say influential lecture. That includes Sir, all my it's always, Aftab sir, as expected. but it's always a pleasure and such a big satisfaction कि लोग अगर अपने कॉलेजेस में इसी तरह से इंस्पायर करें अपने बच्चों को,
और उसको वो करें, तो मुझे लगता है कि इसका पूरा जो है, जैसे रिपल इम्पैक्ट होता है ना, पानी में एक पत्थर डालिए और वो रिपल इम्पैक्ट होता है, इट शुड फ्लोट अवे और वो इम्पैक्ट आएगा, एंड वी ऑल विल हेल्प पीपल टू एस्टैब्लिश देयर ओन बिजनेस। आपको कुछ नहीं पता आपके 4 अल्फाज किसको कहाँ पे मुतासिर कहाँ करते पे हैं। काम करता है, बिल्कुल बेशक सही कह। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर योर नाइस डिलिब्रेशन।